أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرت القرآن کے اس سیشن میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و مددگار ہو اور علم سیکھنے کے اس ذوق سے شرکت کرنے کو قبول عطا فرمائے اور بہترین علم نافع جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا زمرہ بنے، وہ یہ بہترین علم اللہ تعالیٰ ہم سب کو نواز دے اور ہمارے مقدر میں اسے عطا کرے، آمین۔ چلے انشاءاللہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اس کے بعد پھر ہم امہات المومنین کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہمارے آخری سیشن ہوگا سورہ عبسہ کا، جو کہ انشاءاللہ ہم اس کی آیات مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے ہماری بہت ہی اچھی ساتھی اور بہن مریم افروز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا فَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر مریم۔ انشاءاللہ ترجمہ ہم ساتھ میں پڑھیں گے تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے، دونوں جہاں کی علم اور بہترین خیر عطا کرے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں امہات المومنین کے سیشن کی طرف، اور ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی اور بہن روزی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ اسرت القرآن 2020 now presenting امہات المومنین یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ پڑھتے پڑھتے ہم لوگ 5 امہات المومنین پڑھ لیے ہیں، آج 6 نمبر پہ ہوں۔ آج ہمارا سبق ہے سلامہ، جس کا ریئل نام ہے ہند بنت ابی امیہ۔ تو آج ہم ہند بنت ابی امیہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا لقب ہے سلامہ۔ کیسے سلامہ نام ہوا ہم بعد میں آتے ہیں۔ تو ان کا والدین کون تھے؟ ہند کے والد تھے ابو امیہ۔ وہ بہت رئیس آدمی تھے، مکہ کا بڑا گھرانہ میں سے تھے، امیر بھی تھے، دلدار بھی تھے۔ ابو امیہ بہت صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی قافلہ سفر کا ضرورت ہوتا تھا تو ابو امیہ نے وہ سفر کا جو قافلہ اس کا زادیرہ یعنی خرچہ بھی خود کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے سلمہ کا جو فادر یعنی والد ابو امیہ، اس کا لقب بھی تھا زاد الراکب یعنی مسافر کا زادیرہ دینے والا۔ جو سفر کے لیے جو قافلہ ہوتا تھا کبھی کبھار اس کا پورا زادیرہ
उसने उठाते थे। और माँ है आतीका, माँ का नाम है आतीका। तो सलामा आप मक्का में पैदा हुए, फिर थोड़ा सा बड़ी हुई वक्त पर शादी हुआ। हाँ, किसके साथ शादी हुआ? अब्दुल्ला बिन अब्दुल असाद के साथ शादी हुआ। ये कौन थे? ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल सलाम, जो अब्दुल्ला जिसके साथ शादी हुआ था सलामा का, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूफीजाद भाई थे। फिर दूध भाई भी थे। और फिर इन दोनों का लाइफ अच्छा से चल रहे थे, शादी हुआ, जिंदगी में बाहर आ गए, अच्छा से दिन गुजर रहे थे। इन द मीन टाइम क्या हुआ? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने से पहले जो फैसला लिया था कि आखिरी नबी का नबुवत, तो वो आखिरी नबी जाहिर हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिला, उन्होंने दावत दिया। और अबू सलामा, सलामा बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम, इन लोगों ने भी ये दावत में लब्बाइक कहा और ईमान अपनाए। हम देखा स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम बहुत सारे लोग इनकार किया, लेकिन कुछ तो पाकदिल, खुशकिस्मत, हक परस्त लोग थे जिन लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम ईमान अपनाए थे। तो सलामा, अबू सलामा इसी में ही शामिल है। और जब इस्लाम, जो लोगों ने ईमान अपनाए, उन लोगों पर कुरैशी मक्का ने, मुखालिफिन ने जुल्म का पहाड़ तोड़ा था। इतना ज्यादा जुल्म किया कि नबुवत का 5वें साल में हबशा के तरफ हिजरत करना पड़ा। अबू सलामा, सलामा इन लोगों ने भी हबशा में हिजरत की। तो हबशा में हिजरत की, यानी मक्का छोड़ के, अपना जगह छोड़ के, वो परदेश है, वहाँ ऐसा ही किसी को दिल नहीं लगता। लेकिन उस जगह में अल्लाह ने इन लोगों पर एक नियामत दी। क्या हुआ? अबू सलामा, सलामा के घर में चांद सा एक बेटा पैदा हुआ। उन लोगों ने बहुत मोहब्बत से नाम रखा सलामा यानी पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ये सलामा, बेटा सलामा के नाम से ही इन लोगों को कुनियात मिला। सलामा की अम्मी सलामा और सलामा की अबू सलामा। तो हिंद बिन्त अबी उमाया उनका रियल नाम था। सलामा पैदा होने के बाद उसके नाम से वो सलामा कहने लगे। और अब्दुल्ला बिन अब्दुल असाद उसका नाम था, लेकिन वो भी सलामा के तो अबू सलामा नाम से कहने लगे। इस मौके पर हम भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें भी इसी ऐसा औलाद अता करे, ऐसा नस्ल, ऐसा जुर्रियत अता करे कि जिसका नेकी से, जिसका ईमानदारी से, कामयाबी से हमें आइडेंटिटी मिले, हमें पहचान मिले। हमारा जुर्रियत से इतना ईमानदार, नेक, कामयाब अल्लाह करे कि हमारा जुर्रियत से हमें भी लोग पहचाने। आमीन। फिर कुछ दिन बाद हम जानते हैं कि हबशा से बहुत सारे लोग मक्का वापस आए थे। इन लोगों ने भी वापस आए थे। वापस आने के बाद रहने लगे। कुरैशी मक्का का, मुशरिकिन मक्का का जुल्म भी बढ़ता चला, यहाँ तक कि मदीना हिजरत का हुक्म हो गया। और मदीना हिजरत के लिए अबू सलामा पूरा फैमिली के साथ पूरा तैयार हो गए कि मदीना में हिजरत करने का है। और अबू सलामा पहला मुहाजिर किसे कहते हैं? जिसने हिजरत किया। जिन लोगों ने हिजरत किया उसे मुहाजिर कहते हैं। तो अबू सलामा तो मक्का से मदीना हिजरत के लिए पूरा तैयार हो गए, पूरा फैमिली के साथ। लेकिन ये जो अबू सलामा का मदीना हिजरत, ये बहुत बड़ा वाकया है, इसके लिए अलग सेशन का जरूरत है। तो आज हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो टाइटल है, हमारा जो हेडिंग है, वो है उम्महातुल मोमिनीन। तो हम सलामा पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। तो मुशरिकिन मक्का ने अबू सलामा जो मदीना हिजरत करने के लिए तैयार हुए, उसमें रुकावट डाले। तो अल्टीमेटली अबू सलामा अपना फैमिली को छोड़ के अकेले ही हिजरत फरमाए, क्योंकि हिजरत का हुक्म हुआ था उनके लिए। तो कुछ दिन बाद सलामा ने हिजरत फरमाई अपने बच्चे को लेके। अपने जो बच्चे थे उन लोगों को लेके वो भी मदीना के तरफ निकाल पड़े। और अल्टीमेटली मदीना जाके अपना शौहर से
मुलाकात हुई, अपना शौहर से मिलने के बाद दोनों ने एक साथ जिंदगी जीने लगे। लेकिन क्या हुआ, हिजरत के बाद मदीना में जब हिजरत के दूसरे साल में ही जंग बदर पेश आए, तो तीसरे साल में 3 हिजरी में जंग उहूद भी पेश आए हैं। और अबू सलमा कौन थे? बहुत करीब रसूलुल्लाह का बहुत करीब सहाबियों में से थे। रसूलुल्लाह का दूध भाई थे, फुफीजाद भाई थे, दीन इस्लाम अपनाए थे तो दीनी भाई भी थे। चारों तरफ से रसूलुल्लाह के साथ रिश्ता था और हमेशा हर एक मौके पर रसूलुल्लाह को साथ भी देते रहे। तो जंग उहूद में भी अबू सलमा ने शिरकत रखे हैं, बहुत बहादुरी के साथ जंग भी लड़े और शदीद जख्मी हुए। मतलब बहुत सीवियर इंजर्ड हुआ। फिर जंग भी खत्म हो गए, लोग मदीना वापस आए, अबू सलमा भी मदीना वापस आए, लेकिन मतलब सीवियर इंजरी के साथ। जख्म का घाव बढ़ता चला। ऐसा हालत में अबू सलमा ने बीबी उम सलमा को बताता था कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हुए सुना कि कोई मुसीबत आने से वो ये कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ में ये दुआ भी मांगने के लिए कहा। कौन सा दुआ? या अल्लाह, ये मुसीबत में मैं आपसे ही बदला यानी अजर मांग रहे हैं, आप मुझे इससे बेहतर अता कीजिए। तो ये दुआ मांगने से अल्लाह जरूर अता करेगा। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा को सिखाया था। अबू सलमा अभी बीबी उम सलमा को बता रही हैं। तो अबू सलमा का हालात, उसका जो हेल्थ, वो तो जो घाव, जो जख्म था, वो तो ज्यादा बढ़ता चला, डिटोरेट हो रहा था हेल्थ। तो एक दिन मॉर्निंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा का हालचाल पूछने आए, जो क्या ट्रीटमेंट हो रहे हैं, कैसे है, तो पूछने के लिए आए। फिर बातचीत हुआ, पूछताछ हुआ। फिर रसूलुल्लाह जब वापस जा रहे थे तो उसी टाइम अबू सलमा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अबू सलमा ने इंतकाल किया, उसका वफात हो गया उसी टाइम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ से अबू सलमा का आंख बंद कर दिया और एक दुआ भी मांगे। क्या दुआ? या अल्लाह, अबू सलमा को मगफिरत कीजिए, उसका दर्जा बुलंद कीजिए और मुकर्रबीन में शामिल कीजिए और उसका परिवार का देख रेख कीजिए और उसे और हमें हम सबको माफ कीजिए, उसका कब्र को रोशन और वासी कर दीजिए। तो ये दुआ कोई भी मौत के बाद हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम ये दुआ पढ़े थे। फिर तो उसका इंतकाल हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अबू सलमा का जनाजा भी पढ़े और उसमें 9 तकबीर पढ़े। तो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, गलती तो नहीं हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सलमा तो 1000 तकबीर का काबिल थे। अबू सलमा तो 1000 तकबीर का काबिल थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अभी उम सलमा, अभी हालात, सिचुएशन जस्ट हम इमेजिन करें कि मक्का से हिजरत करके आए, अभी 2-3 साल ही हुआ, अभी तो ठीक से यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। इन द मीन टाइम वो सलमा तो हबशा में हुआ था और भी 2 बच्चे हुए और अभी कॉन्सीव भी है, अभी 3 बच्चा और एक पेट में है। और इसी टाइम, और मदीना में कोई रिश्तेदार, कोई अपना तो है भी नहीं। इसी टाइम शौहर का भी इंतकाल हो जाता है। तो जस्ट सिचुएशन को इमेजिन करे, समझे। ऐसा हालत में हस्बैंड तो होता है, एक छतरी होता है, हर तरफ से एक लेडी को प्रोटेक्शन देते हैं, और ऐसा हस्बैंड, दोनों में इतना ज्यादा मोहब्बत था, इतना मतलब नेक, ईमानदार, स्मार्ट, हैंडसम, लविंग हस्बैंड, वो भी चल बसे। तो दुनिया में क़यामत आ गया, दुनिया में ही क़यामत आ गया। उम सलमा क्या करे? ये यतीम बच्चों को लेके, पेट में भी एक है, ना तो कुछ अरेंजमेंट है। जंग उहूद के बाद जो विडो का लाइन पड़ गया था, घर घर में विडो, यतीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को भी एनकरेज कर रहे कि इन लोगों को शादी करो, खुद भी आगे बढ़े। हम देखा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का भी इसी तरह शादी किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अभी देखो, ये अबू सलमा इतना मतलब जलीलुल कदर सहाबी थे। हर मौके पर जब नबूवत का ऐलान हुआ तो एक्सेप्ट की,
ईमान एक्सेप्ट की, हिजरत का कठिनाई उठाया, जंग में शरीक हुआ, शहादत मतलब उसी जंग में जो जख्म हुआ था उसी में ही इंतकाल हुआ ना। तो हर मौके पर दीन के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े थे। आज उसका फैमिली, आज उसका बच्चे इसी हाल में है, तो देखना है ना। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने खुद शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन उम सलमा ने नाराजगी जताई। फिर ऐसा भी कहते हैं कि उमर रजी अल्लाह अन्हु ने भी किया था, लेकिन उम सलमा ने ना ही कह दिया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को जिस तरह इनकरेज किया करते थे, खुद भी आगे बढ़ते थे। तो उन्होंने अपना के लिए ये प्रपोजल, ये रिश्ता भेजा उमर रजी अल्लाह अन्हु के जरिए। तो उम सलामा ने तो उमर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, रसूलुल्लाह के लिए वो रिश्ता लेके आए थे ना, तो उम सलामा ने कहा कि मैं ये जो प्रस्ताव, ये जो प्रपोजल लेके आए हो, मैं इसको बहुत इज्जत करती हूँ, हाँ, लेकिन मेरा कुछ अर्जी है, मेरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ स्पेशलिटी है, हाँ, क्या है कि मैं बहुत बड़ा घराना की बेटी हूँ, बहू भी, हाँ, तो मुझ में वो एरिस्टोक्रेसी, वो बड़ापन है, हाँ, हो सकता है ये कभी घमंड जैसा, मतलब इसी तरह उन्होंने कहा कभी घमंड जैसा हो जाएगा क्या, ये बड़ापन के वजह से कुछ मैं अल्लाह नाराज हो जाए, कुछ मुश्किलात आ जाए, अजाब आ जाए, तो मेरा नेचर इसी तरह कुछ है। नंबर 2 की मेरा एज हो गया है, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उन लोगों का देखभाल करने का है। फिर नंबर 3 क्या है कि मदीना में मेरा कोई है ही नहीं कि मेरा शादी का ये सारे अरेंजमेंट ये सारे करे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब रसूलुल्लाह ने ये तमाम बातें सुने, तो उन्होंने फरमाया कि ये उम सलमा, रसूलुल्लाह जो बात बताई थी उसका माफहूम इस तरह है कि ये उम सलमा, तुम जो यतीम बच्चे के बारे में जिक्र किया, अल्लाह ही उसका परवरिश का इंतजाम करेगा, और यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, इसका भी कुछ हल निकलेगा। फिर उम सलमा ने शादी में हाँ कर दिया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम सलमा का शादी हुआ। कब? 4 हिजरी में, क्योंकि जंग उहुद हुआ 3 हिजरी में। फिर अबू सलमा जंग में ही शहीद नहीं हुआ ना, घर आके कुछ दिन रहे, फिर इंतकाल के बाद इद्दत का टाइम भी गए, तो अल्टीमेटली 4 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम सलमा का शादी हुआ, और रसूलुल्लाह ने मेहर भी अदा की। तो कैसे थे ये उम सलमा, किस तरह का औरत थी? उम सलमा बहुत खूबसूरत और शर्मीली भी थी, बहुत शर्मीली औरत थी। शादी के बाद जब रसूलुल्लाह आते थे घर में, तो वो बेबी ज़ैनब को गोद में लेके बिल्कुल शर्म के मारे वो चुपचाप बैठी रहती थी। इसी तरह मजबूत ईमान वाली थी, सारे रिलीजियस ड्यूटीज पूरा करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखने का कोशिश करती थी, बहुत अच्छा तिलावत कर लेती थी, दूसरों को भी सिखाती थी, और अज़वाज मुतहरा के साथ अच्छा से रह लेती थी, बहुत अच्छा से। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सारे बातें अच्छा से सुनती थी, याद रखती थी, और अमल भी किया करती थी। तो उनका बहुत इंटेलिजेंट हार्ट भी थी। तो कोई दफा ऐसा हुआ कि उम सलमा की इंसाइट, उसका जो विजडम है, उसके बारे से कोई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों को भी मदद की, बहुत मदद मिला। जैसे कि सुलह हुदैबिया के वक्त, ये भी बहुत बड़ा वाकया है, तो इसके लिए भी अलग सेशन का जरूरत है। हम सबका थोड़ा बहुत आइडिया है सुलह हुदैबिया क्या है। तो सुलह हुदैबिया के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को कुर्बानी करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन सहाबियों ने ये इंस्ट्रक्शन लग रहा है कि उनको सुना ही नहीं दिया। सहाबियों ने ऐसा नहीं नाउजुबिल्लाह की डिसोबे करने के लिए इस तरह किया, डिसोबे करने के लिए नहीं, बल्कि ये जो ट्रीटी का, ये सुलह का जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी में सहाबियों ने शॉक्ड थे, बिल्कुल शॉक्ड थे उन लोगों ने। इस वजह से वो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए अभी हालात कैसा है, उम्रा के लिए निकले थे, अभी बीच रास्ता में है, मक्का उम्रा के लिए जा नहीं पा रहे हैं, अभी रिटर्न मदीना आना है, लेकिन ये लोग बिल्कुल बात उन लोगों को सुना ही नहीं दे रहे।
रसूलुल्लाह को कैसा कैसा हालात का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत टेंस्ड होके अपना तांबू के अंदर गए और इसी सफर में सलामा रसूलुल्लाह के साथ में थे। तो सारे वाकया रसूलुल्लाह ने सलामा को बताए। तुरंत सलामा बहुत इंटेलिजेंट थी, ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छा से समझती थी, तुरंत वो साइकोलॉजी स्टडी कर ली। बड़े मोहब्बत के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुझाव दिया कि या रसूलुल्लाह, मेरी सुझाव ये है, मेरी सजेशन ये है कि आप किसी को और कुछ ना कहिए, रादर आप बाहर जाइए, अपना कुर्बानी कर लीजिए, बाल कटवा लीजिए, आपको साथियों ने ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। रसूलुल्लाह ने ऐसा ही किया, देखा कि वही हुआ। रसूलुल्लाह ने जब कुर्बानी किया, बाल कटवा लिए, तो तमाम साथियों ने, सहाबियों ने भी जल्दी जल्दी ये काम कर ली। तो उनका सलामा का ये सजेशन के लिए ये उलझन में जो सुझाव दिया था, वो सुलझ गए। सुभान अल्लाह। फिर तो लोगों ने काम करके फिर मदीना वापस आए। तो सलामा रसूलुल्लाह का वफात के बाद ज्यादातर दीन के काम में ही एंगेज रहा करती थी। हदीस भी बहुत ही रिवायत की, उनसे रिवायत किया है। अप्रोक्सीमेटली 378 हदीस रिवायत की है, जिसमें वो वाला हदीस तो एक है ही जो मुसीबत के वक्त पढ़ने के लिए कहा गया था, सलामा बाद में भी रिवायत की। इसके अलावा और एक है कि सलामा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ा करते थे। कौन सा? या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिका। फिर और एक हदीस का माफूम जो सलामा से रिवायत है, जो कुर्बानी से रिलेटेड, कि जब जिलहज का चांद दिखे तो उस टाइम से लेके कुर्बानी तक जो लोग कुर्बानी का इरादा की वो लोग नाखून और बाल ना ही काटे। ये भी सलामा से रिवायत। और एक और भी बहुत सारे हैं सलामा से रिवायत किया हुआ, 378 करीब है। तो उन्होंने याद भी रखा करती थी। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद सलामा से ही ज्यादा रिवायत किया हुआ हदीस हमें मिलते हैं। सलामा बहुत पाक, सब बिल्कुल मिसाली अखलाक, मिसाली औरत थी, रोल मॉडल थी। उनका घर भी पाक, साफ, पुरसुकून, पुरामान होता था कि फरिश्ता भी उतरते थे। आयत जो वर्ड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, जो सूरह अहज़ाब का आयत नंबर 33 में है, वर्ड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो भी सलामा के घर में ही नाजिल हुआ था। सुभान अल्लाह। इतना घर भी पाक, सब की फरिश्ता भी वही लेकर नाजिल हुआ था। जो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, ये आयत वर्ड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन कहते हैं इसे। ये सलामा के घर में ही नाजिल हुआ था। तो अज़वाज मुतहरा में, उम्महातुल मोमिनीनों में सलामा ने सबसे लंबी उम्र पाई थे। सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, और इंतकाल के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा पढ़ाई और मदीना का जन्नतुल बाकी जो कब्रिस्तान है वहां दफनाया गया। तो सलामा का लाइफ बहुत ही इवेंटफुल है। बहुत बड़ा घराना की बेटी, बहू थी। कितना इवेंट, कितना लाइफ में कितना कुछ अप डाउन हुआ है। तो तमाम चीजें से हमें कुछ लेसन भी जरूर मिलते हैं। हम लेसन ले भी और इम्प्लीमेंट भी करें। सबसे पहले जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उन्होंने खुद को जानती थी। उन्होंने कहा कि मुझ में एरिस्टोक्रेसी है। जब हमें मालूम होगा कि मुझ में ये चीज है, अगर कुछ खामी है तो हम उसे दूर करने का कोशिश करेंगे, कुछ खूबी है तो उसको निखारने का कोशिश करेंगे। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम सलामा से ये लेसन ले। फिर सबर, इतना मुश्किलात, इतना अमीर घर के बेटी है, हबशा हिजरत की, मदीना हिजरत की, ऐसा हालात से गुजरे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी तो ज्यादा दिन नहीं रह पाए। 4 हिजरी में शादी हुआ, फिर रसूलुल्लाह कुछ दिनों में कुछ साल में इंतकाल हुआ। तो कितना सबर, और सबर के साथ तवक्कुल कि अल्लाह जो करेगा वही बेहतर होगा। ये तवक्कुल के साथ दुआ भी मांगता चला, हमेशा दुआ भी मांगता चला। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड भी है, सबर, तवक्कुल, दुआ, जिसका हम देखा नबी रसूल, इन लोगों ने ये सारे क्वालिटीज के जरिए बड़े बड़े मुश्किलात से भी नाजात पाए हैं।
तो सलमा भी ये सारे काम किया था, हमें ये लेसन लेने का है। और उनका हिकमत, उनका विजडम, उनका बात करने का तरीका, उनका जो सजेशन देने का तरीका, बातें, ये तमाम चीजें का लेसन सबक हमें सलमा से मिलते हैं। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो अल्लाह माफ करे। सलमा का जो तमाम गुडनेस हम लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं, तो वो हमें भी अता करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। वाखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर रोज़ीबा जी, बेहतरीन बातें अल्लाह आपने हज़रत उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से बताई है।